میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اپنے پرانے چینل کے اوپر جس کے اوپر تقریباً 9.5 لاکھ ویوز آ گئے تھے. یقین کریں مجھے لگا تھا یہ میرے چینل کے اوپر سب سے بیکار ویڈیو ہے, سب سے تھرڈ کلاس ویڈیو ہے, اور واقعی کوئی اتنی خاص ویڈیو بھی نہیں تھی. السلام علیکم, میں ہوں تنویر اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی یوٹیوب چینل. اگر آپ ایک نیو یوٹیوبر ہیں اور یوٹیوب پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج سے یہ 3 غلطیاں کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ جب تک آپ یوٹیوب کے اوپر یہ 3 غلطیاں کرنا نہیں چھوڑتے یوٹیوب کے اوپر کامیابی ملنے کے چانسز بہت کم ہیں. آگے ہم بات کریں گے کہ وائی ٹی ٹیچر کے نام کے چینل نے آج 13 تاریخ کو ریموو ہونا تھا, ابھی تک ریموو کیوں نہیں ہوا. اس ٹاپک پر آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کی ان 3 کامن مسٹیکس کے بارے میں. دیکھیں نیو یوٹیوبرز کے چینلز کا جب میں وزٹ کرتا ہوں ان کے چینلز کے اوپر جو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں, جو مسٹیکس مجھے نظر آتی ہیں, ان مسٹیکس کو لے کر میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ بھی وہ غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ وہ غلطیاں کرنا چھوڑ دیں. لیکن یہ 3 آپ کو جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں نظر آتی ہیں, یہ 3 چھوٹی چھوٹی نہیں, یہ بہت بڑی غلطیاں. اگر آپ کو میں سمجھا پاؤں تو بنا ٹائم ویسٹ کیے آتے ہیں آپ کی پہلی غلطی کی طرف. پہلی غلطی یہ کہ اکثر نیو یوٹیوبرز کے مائنڈ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ یار میں اچھی ویڈیو بناؤں یا بری ویڈیو بناؤں, اچھی ایڈیٹنگ کروں یا بیکار ایڈیٹنگ کروں, اچھے ٹاپک پر ویڈیو بناؤں یا ایویں ٹاپک پر ویڈیو بناؤں. میرے 10 سبسکرائبر ہیں, 20 ہیں, 50 ہیں یا 100 ہیں, تو میرے ویوز تو یہی آنے ہیں. مان لیں آپ کے چینل کے اوپر 50 سبسکرائبر ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں جیسی بھی ویڈیو بناؤں مجھے دیکھنے والے تو یہ 50 لوگ ہیں, یہی مطلب میرے ویوز آئیں گے, یہ جو 50 لوگ ہیں یہی 50 ویوز آئیں گے. تو جب آپ یہ سوچ کر ویڈیو بناتے ہیں کہ انہی 50 لوگوں نے آپ کی ویڈیو کو دیکھنا ہے, یہ سوچ کر جب آپ ویڈیو بناتے ہیں, اچھا ٹاپک فائنڈ نہیں کرتے, اچھی ایڈیٹنگ نہیں کرتے, ایسیو اچھی نہیں کرتے, تھمبنیل اچھا نہیں لگاتے, دیگر جتنی بھی چیزیں آپ کو کرنی چاہیے آپ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے تو 50 ہی سبسکرائبر ہیں, یہی ویوز آئیں گے میں جیسی بھی ویڈیو بناؤں. تو سر جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا, آپ کے مائنڈ میں وہ 50 لوگ ہوتے ہیں نا, 50 ویوز بھی نہیں آتے ہیں, 10 15 20 ویوز آپ کے آتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کی سوچ ہے. آپ نے جب ویڈیو بنائی آپ نے یہ کیوں سوچا کہ بس آپ کے یہ 50 سبسکرائبرز ہیں, آپ ان کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں. جب آپ اتنا سا سوچ کے ویڈیو بنائیں گے تو ویوز اتنے آئیں گے. تو بھیا آپ نے اتنا سوچ کے ویڈیو بنانی ہے تاکہ کم سے کم اتنے ویوز تو آپ کو ملیں. آپ نے سوچنا کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے کہ بس میرے 50 سبسکرائبر ہیں یہی دیکھیں گے. یہ غلط سوچ ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے آپ پوری یوٹیوب کمیونٹی کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں, 1 2 50 100 لوگوں کے لیے نہیں, آپ ملینز آف پیپلز کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر لاکھوں میں ملینز میں ویوز آئیں گے. اس سوچ سے آپ کے کنٹینٹ کی کوالٹی میں فرق آئے گا. وہ کیسے؟ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ 50 لوگوں نے ویڈیو دیکھنی ہے, آپ فضول سے ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا دیتے ہیں, ایڈیٹنگ اچھی نہیں کرتے, باقی چیزیں بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے. لیکن جب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے کمپٹیٹرز کون ہیں؟ بڑے یوٹیوبر جن کے پاس 2 ملین سبسکرائبر ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, آپ ان کو اپنا کمپٹیٹر مان کے ویڈیو بنائیں. جب آپ ان کو اپنا کمپٹیٹر مان کے ویڈیو بنائیں گے آپ ٹاپک فائنڈ کرنے پر محنت کریں گے, آپ اچھا ٹاپک تلاش کریں گے, اس کے بعد ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے محنت کریں گے, ایڈیٹنگ کرتے ہوئے محنت کریں گے, اپلوڈ کرتے ہوئے محنت کریں گے, صحیح ٹائم کا انتخاب کریں گے کہ آپ کو کس وقت ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے. اس کے بعد ویڈیو کی اچھی ایسیو کریں گے, ٹائٹل ٹیگ ڈسکرپشن پہ محنت کریں گے, تھمبنیل پہ محنت کریں گے. ان ساری چیزوں پہ محنت آپ تب کریں گے جب آپ بڑے یوٹیوبرز کو اپنا کمپٹیٹرز مانیں گے اور آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی کہ جو ویڈیو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ 50 لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ملینز آف پیپل کے لیے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. جب یہ سوچ کے ویڈیو بنائیں گے آپ کی ویڈیو اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. جب 50 لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے تو بیکار ویڈیو بنائی جاتی ہے, لیکن جب ملینز لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے تو بڑی سوچ سمجھ کے بڑی محنت کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی ہے. موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو اگنور مت کرنا. اکثر نیو چینلز والوں کے ساتھ, نیو یوٹیوبرز کے ساتھ بات ہوتی ہے, آگے سے ہمیشہ وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یار تنویر بھائی میں کیوں محنت کروں یار, دیکھنے والا کون ہے, یہی 10 ویوز آ رہے ہیں, 20 آ رہے ہیں, 50 آ رہے ہیں. تو یار جب آپ اتنا سا سوچ کے ویڈیو بناؤ گے تو اتنے سے ہی ویوز آئیں گے نا. اتنا سوچ کے ویڈیو بناؤ تو اتنے ویوز آئیں گے. اتنا صرف سوچنا نہیں ہے, اس سوچ کے ساتھ اتنی محنت بھی کرنی ہے. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. جب آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے آپ کے کتنے ویوز آئیں گے؟ 10 آئیں گے, 50 آئیں گے, 100 آئیں گے. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اپنے پرانے چینل کے اوپر جس کے اوپر تقریباً
तकरीबन 9 साढ़े 9 लाख व्यूज आ गए थे। यकीन करें मुझे लगा था ये मेरे चैनल के ऊपर सबसे बेकार वीडियो है, सबसे थर्ड क्लास वीडियो है, और वाकई कोई इतनी खास वीडियो भी नहीं थी। अगर उस वीडियो के ऊपर मैं मेहनत कर देता, जहां उसके ऊपर 9.5 लाख व्यूज आए हैं सर, वो मिलियंस में जा सकती थी, 2 3 4 5 मिलियंस में जा सकती थी। मैं खुद इस चीज को एडमिट कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरी वो वीडियो इंतहाई बेकार थी। लेकिन उस वक्त उस वीडियो के ऊपर व्यूज इसलिए आए थे क्योंकि उस टॉपिक पर उस टाइम पे किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी, मेरी पहली वीडियो थी, ट्रेंडिंग टॉपिक था, इसलिए व्यूज आ गए। अगर वो वीडियो मेरी अच्छी होती ना सर, मिलियंस में जा सकती थी। तो आपने हमेशा ये सोचकर वीडियो बनानी है। आपको क्या पता है कि आपकी कौन सी वीडियो रैंक हो जाए, वायरल हो जाए। अगर आपकी कोई बेकार वीडियो रैंक हो जाती है, वायरल हो जाती है, उससे आपके चैनल को कोई खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि लोगों के सामने वो वीडियो आती है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लोगों को इतनी खास पसंद नहीं आती। लेकिन अगर आपकी एक अच्छी वीडियो रैंक या वायरल हो जाती है, लोगों के सामने आती है, लोग धड़ाधड़ आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपकी पुरानी वीडियोस के ऊपर भी व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी कहानी समझ में नहीं आई, शॉर्ट कर देता हूं। कुल मिलाकर जब भी अपने चैनल के लिए वीडियो बनाएं, ये सोचकर ना बनाएं कि बस ये 50 लोग आपको देखेंगे। आप ये सोचें 50 मिलियन नहीं, 500 मिलियन लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। ये सोचकर जब वीडियो बनाएंगे ना, आप खुद कहेंगे कि यार आपकी पुरानी वीडियोस के अंदर और अब की वीडियोस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। करके देख लें, जस्ट आपने अपनी सोच को चेंज करना है। आगे आते हैं दूसरी गलती की तरफ। दूसरी गलती क्या है? बड़े यूट्यूबर्स की चीजों को कॉपी करना। अब ये चीजों से क्या मतलब है? बड़े यूट्यूबर ने जो थंबनेल लगाया, बिल्कुल वैसे ही थंबनेल आपने बनाकर लगा दिया। अक्सर आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि तनवीर भाई फलाना जो बड़ा यूट्यूबर है यार, वो थंबनेल कैसे बनाता है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाए। और कभी कभार मैं वीडियो बना भी देता हूं, आगे बनाता भी रहूंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज से मना करूंगा। देखें, जो काम बड़ा यूट्यूबर कर रहा है, सेम वही काम आप कर रहे हैं, तो आपके काम में और उसके काम में फर्क क्यों है? लोग उसको छोड़कर आपको क्यों देखेंगे? कभी भी ये काम ना करें। आप यूनिक कंटेंट बनाएं। देखें, अगर आप कोई यूनिक कंटेंट बनाते हैं और यूनिक थंबनेल बनाते हैं और आपका चैनल आहिस्ता 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 ग्रो होता है, तो आपका चैनल आपकी पहचान बनता है। लेकिन अगर आप बड़े यूट्यूबर्स को कॉपी करते हैं, तो देखने वालों को तो भैया देखते ही पता लग जाता है कि आप फलां बंदे को कॉपी कर रहे हैं। वो आपके फैंस क्यों बनेंगे? जब तक आपके यूट्यूब के ऊपर फैंस नहीं बनते ना, आपको कामयाबी भी नहीं मिलती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े यूट्यूबर्स ने जिन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन टॉपिक्स पर वीडियोस ना बनाएं। बेशक बनाएं, जरूर बनाएं, अच्छे व्यूज आते हैं। लेकिन आपने करना यह कि उनको कॉपी नहीं करना है। जो उसने थंबनेल लगाया, सेम टू सेम वैसा ही थंबनेल आपने लगा दिया। देखने वाला क्यों देखेगा यार? थोड़ा यूनिक होना चाहिए ना। अब कंटेंट के अंदर भी आपने कुछ चेंजेस करनी है। अब ये नहीं कि बड़े एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, चाइना के बारे में 10 फैक्ट्स दी, आपने भी यही वीडियो बना दी, चाइना के बारे में 10 हैरत अंगेज चीजें या कुछ भी। अब जो चीजें उसने बताई हैं वही चीजें आप भी बता रहे हैं। उसकी वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, अब वो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे तो नीचे लिखेंगे कॉपी कैट कॉपी कैट। ये काम कभी भी ना करें। ठीक है, इस टॉपिक को कवर करें, जिस टॉपिक पर बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है, आप भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। थंबनेल के अंदर एक वाज़ेह फर्क होना चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। और अंदर जो कंटेंट है, उसने भी 10 फैक्ट्स बताए हैं, आप भी 10 फैक्ट्स बता रहे हैं। लेकिन अब ये चीज नहीं हो कि जो चीज उसने बताई है सेम टू सेम वही चीज आप भी रट्टू तोता बन के वही बता रहे हैं। नहीं, उसके 10 पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, आपके 10 पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। इससे ये फर्क होगा कि जिन लोगों ने उसकी वीडियो देखी है, आपकी वीडियो भी देखी है, अब वो ये नहीं कहेंगे कि आप उसको कॉपी कर रहे हैं। थंबनेल बिल्कुल डिफरेंट होगा और आपके फैक्ट्स में और उसके फैक्ट्स में एक वाज़ेह फर्क होगा। आपकी अपनी रिसर्च होगी, अब लोग आपके फैंस बनेंगे। लेकिन जब तक आप बड़े यूट्यूबर्स को कॉपी करते रहेंगे, लोग आपके फैंस नहीं बनेंगे। उसके बाद एक और चीज भी है, और वो चीज ये है कि हम जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं, आपको हमेशा कहते हैं कि यूनिक आइडिया के ऊपर यूनिक कंटेंट बनाते हैं तो आपका चैनल जल्दी से ग्रो होता है। लेकिन यूनिक आइडिया, यूनिक कंटेंट, यूनिक टॉपिक ये मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पे 90% से ज्यादा जिन टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, लोग उन्हीं को बार बार कवर कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपको मना नहीं करूंगा कि जिन टॉपिक्स पर वीडियोस बनी हुई हैं आप उनको दोबारा कवर ना करें। देखिए, कवर करें, लेकिन जिन टॉपिक्स पर वीडियोस बनी हुई हैं उन्हीं टॉपिक्स को अगर एक नया चैनल, नया यूट्यूबर कवर करता है तो उसका फर्ज बनता है कि पुराने चैनल की पुरानी वीडियो से अच्छी वीडियो बनाए। आप 2 साल के बाद वीडियो बना रहे हैं तो 2 साल के बाद आपकी ये नई वीडियो इस 2 साल पुरानी वीडियो से अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वीडियो इस पुरानी वीडियो के मुकाबले में बेकार है तो भैया ये वीडियो ऊपर ही रहेगी, आपकी वीडियो नीचे 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 होते होते नीचे जाके दब जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो को कंपीट करें जो 2 साल
साल पहले अपलोड हुई है, तो इससे बेहतर, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुराने टॉपिक्स के ऊपर दोबारा वीडियो ना बनाएं, पुराने टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो बनाएं, लेकिन थोड़ा पॉलिश करके, जैसे पुरानी चीजों को चमका के बेचा जाता है ना, कभी लंडे में जाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि पुरानी इस्तेमाल शुदा चीजों को ऐसा चमका के आपके सामने रख देते हैं, आप कहते हैं यार नई चीज को छोड़ो, लंडे वाली ले लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने चमका के रखी होती है। पुराने टॉपिक को दोबारा पॉलिश करें, अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से समझाएं, अच्छे तरीके से वीडियो बनाएं, तो आपके व्यूज आएंगे। आते हैं जी तीसरी गलती की तरफ। तीसरे नंबर वाली मिस्टेक, ये मिस्टेक भी न्यू यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा करते हैं कि जब वो नया चैनल बनाते हैं, वो देखते हैं कि यार आज मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो है, एक महीने के बाद देखते हैं यार मेरे चैनल के ऊपर 20 वीडियोस हो गई हैं, 25 हो गई हैं, 30 हो गई हैं। फिर वो बड़े चैनल्स का विजिट करते हैं, वहां पर उनको वीडियोस की तादाद नजर आती है 500, 800, 1000। अब उनके माइंड में एक बात आती है कि मेरे चैनल के ऊपर तो 20 वीडियोस हैं, ये काम मुकाबला कर सकती हैं उन 1000 वीडियोस का? तो नहीं कर सकती हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि नहीं कर सकती हैं। आपके चैनल के ऊपर अभी वीडियोस की तादाद कम है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप वीडियोस की तादाद इतनी ज्यादा कर दें, मतलब क्वांटिटी इतनी बढ़ा दें कि क्वालिटी बिल्कुल ही गिरा दें। देखें, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का आपने ख्याल रखना है। अब ये नहीं कि यार मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस की तादाद है 20, मैं किसी तरह बस 100 वीडियोस अपलोड कर दूं तो कामयाबी मिल जाएगी। इससे क्या होगा? इससे आप बिल्कुल थर्ड क्लास टॉपिक्स के ऊपर थर्ड क्लास कंटेंट बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू कर देंगे। आपके जो सब्सक्राइबर्स होंगे, जब उनके सामने आपकी ऐसी वीडियोस आएंगी जिनमें बिल्कुल दम नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, तो वो आपके चैनल को वापस अनसब करते जाएंगे। और अगर अनसब नहीं भी करते, आपकी वीडियोस को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपकी वीडियोस को देखना बंद कर देंगे। तो क्वांटिटी के पीछे भागते हुए क्वालिटी कभी भी खराब ना करें। हां, क्वालिटी को बरकरार रखते हुए अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर आप दिन में एक वीडियो बनाते हैं, क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो आप 2 बना लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 वीडियो बनाने से आपकी क्वालिटी खराब हो रही है, आपकी रिसर्च सही तरीके से नहीं हो रही, एडिटिंग सही तरीके से नहीं हो रही, या एसईओ नहीं हो रही, या थंबनेल सही तरीके से नहीं लग रहा, तो फिर 2 ना बनाएं, फिर एक ही बनाएं। क्वालिटी को आपने बरकरार रखना है, क्वालिटी को नहीं गिराना है। हां, अगर आपकी क्वालिटी खराब नहीं हो रही, आप पहले एक वीडियो बना रहे थे, अब आप 2 अच्छी वीडियो बना सकते हैं, तो बेशक आप 2 वीडियो अपलोड करें। लेकिन माइंड से यह बात निकाल दें बस किसी तरह 100 वीडियोस हो जाएं, 200 वीडियोस हो जाएं, तो फिर देखना मैं झंडे गाड़ दूंगा। यह काम आपने नहीं करना है। तो अब बात करते हैं वाईटी टीचर चैनल के बारे में कि आज 13 तारीख है और इस चैनल ने आज रिमूव होना था, अभी तक रिमूव क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है भाई, इसलिए रिमूव नहीं हुआ। बाकी जो फैक्ट्स हैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखें, जब आपके चैनल के ऊपर 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्राइक्स आती हैं तो आपका चैनल अगले 7 दिनों के अंदर रिमूव हो जाता है। यूट्यूब आपसे यही कहता है कि आपके पास 7 दिन हैं, आप अपने इश्यूज़ को सोल्व करें। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, हम 90 दिन इंतज़ार करें, 90 दिन के बाद कॉपीराइट की स्ट्राइक्स एक्सपायर हो जाती हैं। इनके केस में ये इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले इनका चैनल ही रिमूव हो जाना है। दूसरे नंबर पर यह होता है कि जिसने आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक दी है, आप उसको पैसे देकर ख़त्म करवा लें या उससे सॉरी वोरी करके माजरत करके कि यार आइंदा मैं ऐसी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। अगर अगला बंदा जिसने स्ट्राइक दी है वो खुद अपनी स्ट्राइक्स को वापस लेता है तो भी हमारा चैनल बच जाता है। अब ये कंपनी ने दी है, कंपनी इनको मतलब ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रही। तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है काउंटर फाइल करने का। तो ये पहले काउंटर फाइल सबमिट तो करवा रहे थे, लेकिन इनके सारे काउंटर्स रिजेक्ट हो रहे थे, कोई एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। बाद में इनको सही तरीके से मैंने समझाया, इनको प्रोफेशनल तरीका बताया, टेक्स्ट भी लिख के दिया कि भाई आपने ये टेक्स्ट लिखना है। कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट होता है जो आपने लाजमी मेंशन करना होता है, जिसके बारे में इनको पता नहीं था। मैंने भी समझाया, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्क्रीन इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो हम सब ने इनकी हेल्प की है, तो इनके कुछ काउंटर फॉरवर्ड हो गए, यानी एक्सेप्ट हो गए। जब आपके काउंटर फॉरवर्ड हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो आपका चैनल उस तारीख को टर्मिनेट नहीं होता जो तारीख पहले यूट्यूब ने आपको बताई होती है। टर्मिनेशन की जो डेट है ना, यानी चैनल की जो टर्मिनेशन है वो ऑन होल्ड चली जाती है। उसके बाद अगले बंदे को जिसने स्ट्राइक दी होती है उसको 10 से 14 दिनों का टाइम दिया जाता है कि तुम अब साबित करो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसने साबित करनी होती हैं, प्रूफ करनी होती हैं। यानी कॉपीराइट की स्ट्राइक जो
دینے والا ہے اس کو YouTube 10 سے 14 دن کا ٹائم دیتا ہے کہ تم یہ چیزیں پروف کرو. اگر وہ پروف نہیں کر سکتا تو ان کی سٹرائکس ختم ہو جاتی ہے. کل ملا کر ان کے چینل کی جو ٹرمینیشن ہے وہ آن ہولڈ چلی گئی ہے, اور آن ہولڈ اس لیے گئی ہے کیونکہ ان کے کچھ کاؤنٹر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, فارورڈ ہو گئے ہیں. تو آپ سب کی دعاؤں کا اثر ہے. اب آپ سب نے دعا کرنی ہے ان کے لیے کہ اللہ کرے ان کے باقی جو کاؤنٹر ہیں, باقی جو سٹرائکس ہیں, ان پر بھی کاؤنٹر لگ جائیں, وہ بھی ایکسیپٹ ہو جائیں, کسی بھی طرح سے یار ان کا چینل ڈیلیٹ ہونے سے بچ جائے. اتنی محنت کے بعد بندے کا چینل گرو ہوا ہے, تو ہم سب کی کوشش ہے, میں اکیلا نہیں ہوں, جتنے بھی ٹیک یوٹیوبرز ہیں سب ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, سب ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور ٹیک یوٹیوبرز کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں, مختلف طبقوں کے لوگ ہیں جو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. اب یہ مختلف طبقے MCN بھی ہو سکتا ہے, CMS بھی ہو سکتا ہے, پارٹنر مینیجر بھی ہو سکتے ہیں, مختلف طرح کے لوگوں سے کانٹیکٹ ہم بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. آپ سب نے دعا کرنی ہے کسی بھی طرح سے یار ان کا چینل ٹرمینیٹ ہونے سے بچ جائے. اگر خدا نخواستہ ان کا چینل ابھی نہیں بھی بچتا, ریموو ہو بھی جاتا ہے, 3 مہینوں کے بعد والا ایک آپشن ہوتا ہے, ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں. دیکھیں ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں, آپ سب نے دعا کرنی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.